Hello guys, welcome to our online platform. I'm Ajay Singh and in this video we're going to discuss some important things related to CAT 2020 exam. As we all are aware, 75 days रह गए around, some 2.5 months down the line CAT का exam conduct होना है November end में. So as far as your preparation is concerned, some of the candidates might be preparing for quite some time, 6 months, 1 year down the line. So they might be well prepared to take up the CAT exam. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो सम कैंडिडेट्स उन्होंने अभी जस्ट फॉर्म फिलअप किए हैं, जस्ट अभी नोटिफिकेशन आई थी तो फॉर्म फिलअप किया है एंड दे माइट बी वंडरिंग दैट हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 2.5 मंथ्स 2-3 मंथ्स कैसे प्रिपेयर करना है. सो एनीवे देयर सो मेनी भी देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस गोइंग अराउंड एंड जो प्रिपेयर कर भी चुके हैं तो उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आर दे वेल प्रिपेयर्ड और नॉट. So, in order to help you guys, we have launched this very important series, this Crack Cat series. And in this series, we will be releasing one video every day, which will be having 5 to 10 questions, which not only cover the questions at the CAT level, but they will also be covering up the concepts related with them. So, हम concept भी करेंगे, question भी करेंगे, और जो prepared हैं, they can have an idea where they stand. Are they able to solve those questions or not? And those who are just going to start up their preparation, they can have an idea what is the level of the CAT questions. And accordingly concepts को follow करके they can just kick start their preparation along with us. Fine. So आज का जो हमारा वीडियो है that is related to the number system 01 first वीडियो रहेगा ये, and we will discuss 5 questions on the basis of number system. और जिन्होंने number system prepare कर लिया है, number system का topic जिनका clear है, वो साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Yes, give it a try. Let's see. So we have the first question in front of us. The question is 53 power 111 plus 23 power 111 is divided by 38. The remainder will be what? 53 power 111 plus 23 power 111 को 38 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या रहेगा? So if in case that you are aware of the concept of remainder, this can be easily solved. What we can do? क्या कर सकते हैं हम इसमें? Then number is 53 raised to power 111 plus 23 raised to power 111 divided by 38. What we will do? क्या करेंगे हम? अब देखो 38 से अगर हम देखें इसके 53 और 23 इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में आता है 38. इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 30 का है, 53 23 का, और इन दोनों का आपस में गैप कितना है? इसका 15 का, इसका 15 का. सो आई कैन राइट इज 53 को लिखता हूं मैं, अगर 38 से डिवाइड करेंगे तो 38 प्लस 15 रेज टू पावर 111 प्लस दिस कैन बी रिटन 38 माइनस 15 रेज टू पावर 111 डिवाइडेड बाय 38. और जब इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये 38 का मल्टीपल है, 38 से डिवाइड करना है, तो दिस इज गॉन, यहां रिमाइंडर 0 बचेगा. कितना? 15 पावर 111 और यहां पर 38 से 38 डिवाइड हो गया, माइनस 15 पावर 11 प्लस करके आप माइनस 15 पावर 11 कर लो, 111 कर लो, डिवाइडेड बाय 38. माइनस है और बाहर ऑड पावर है, सो इट विल बी 15 पावर 111 माइनस 15 पावर 111 डिवाइडेड बाय 38. दैट दिस विल कैंसल आउट एंड 0 डिवाइडेड बाय 38. सो मींस 38 से जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नन ऑफ दीज. Fine. I hope जो first timer हैं, they are also able to follow the concept. So let's move on to the next one. Next question in front of you. आपके सामने है question. Find the GCD of. GCD means greatest common divisor, और हम इसको SCF भी कहते हैं. Highest common factor बोल दो या greatest common divisor बोल दो. Factor और divisor एक ही बात होती है. तो यहां पर 2 नंबर लिखे हैं. एक नंबर है 1 1 1 1 1 सो ऑन अप टू, कितनी बार लिखा है? 100 टाइम्स, 100 बार लिखा हुआ है, राइट. और एक और नंबर है उसमें 1 1 1 1 1 सो ऑन अप टू, कितनी बार लिखा है? दिस इज 60 टाइम्स, 60 बार लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन इज इसका और इसका, ये 2 नंबर जो हैं, इनका जीसीडी या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ पता होना चाहिए. एचसीएफ भाई क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, और वो डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, उसको हम एचसीएफ या जीसीडी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई नंबर है 10 है और एक 6 है, तो इन दोनों का जीसीडी कितना आएगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? दैट विल बी 2. अगर मैं 5 और 7 ले लूं तो इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? दैट विल बी 1.
फाइन, क्लियर है। तो अब हमें ये क्लियर है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दैट वी नो। तो हमें ये देखना है कि इस नंबर और इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो हाईएस्ट है, जो कि दोनों को डिवाइड कर सके, जो दोनों को डिवाइड कर सके। यस, ट्राई करेंगे, जिसको आता है ट्राई करिए प्लीज, गो हेड। एंड दोज हु आर नॉट अवेयर, जिसको नहीं आता है, कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आइए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। देखो, यहां पर नंबर लिखा मैंने 111 और यहां पर लिखा मैंने 11। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? दैट विल बी 1। क्यों? क्योंकि 11 के टेबल में 1 1 1 ये तो आता ही नहीं, डिवाइड नहीं होता, तो एचसीएफ विल बी 1। बट यहां पर 3 की जगह एक और 1 कर दूं, 4 1 कर दूं। अब इनकी एचसीएफ की बात करो, ये 4 1 है और ये 2 1 है, तो होगा क्या? ये 11 है, 11 से जब डिवाइड करें तो एक पेयर ये डिवाइड होगा, फिर ये नेक्स्ट पेयर भी डिवाइड हो जाएगा। यहां पर 2 और 1 था, तो इस 2 1 1 से ये पेयर डिवाइड होगा, ये पेयर डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 11 से ये खुद तो डिवाइड होता है और ये भी नंबर डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 1, 2 टाइम्स 1 1। और अदरवाइज ये 4 और ये 2, इन दोनों का एचसीएफ भी तो 4 1 थे और 2 1 थे, इन दोनों का एचसीएफ भी तो 2 ही आता है, राइट? 2 बार 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम लिखा हुआ है, 1 1 1 3 टाइम लिखा हुआ है। अब ये 3 1 है, जब इन 3 1 और इन 3 ये 6 टाइम 1 है, इनको हम इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये किससे डिवाइड होता है? ये या तो 1 से डिवाइड होता है या 3 1 से डिवाइड होता है। 111 की बात करें, और 111 है यहां पर, तो 3 टाइम्स 1 के 111 के यहां पर 2 पेयर बनते हैं। जब 111 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ये इस पूरे पेयर को डिवाइड कर देगा, फिर जब कैरी करेंगे इसको नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 0 0 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम एक बार फिर से ये इस पूरे को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को नंबर्स को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर विल बी 111। और 111 से बड़ा नंबर तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ कभी भी जो छोटा नंबर होता है उससे बड़ा नहीं होता, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़ा नहीं होता है। क्लियर है ये चीज? यहां पर ये आ गया आंसर। तो यहां पर कितना थे? ये 6 1 थे, ये 3 1 थे। 6 और 3 का एचसीएफ कितना होता है? 6 और 3 का एचसीएफ 3 होता है। तो यहां देखो, यहां पर भी 3 1। और अगर यहां पर अगर मैं एक अलग से लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 ये लिखा, ये 6 1 है, और 1 2 3 4 ये 4 1 है। इनका एचसीएफ निकालना होगा तो क्या? ये 4 1 है और ये 6 1 है, तो 8 होते तब तो 4 से एक बार सेट बना लेते, 4 अगला सेट बन जाता है। बट ये जो है, ये 4 1s हैं, ये इसको पूरा पूरा नहीं डिवाइड करेंगे। 3 का करें तो 3 तो इसी को डिवाइड नहीं करता, फिर 2 का करें तो 2 1 जो है, मतलब 1 1 जो है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है, तो मतलब ये 4 टाइम्स 1 तो डिवाइड हो ही जाएगा। 6 टाइम 1 है, तो ये पेयर बना एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1s और 4 1s का एचसीएफ कितना आएगा? दैट विल बी 2 1s। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो हमें बेसिकली जितने ये नंबर हैं, ये 6 है और ये 4 है, 6 और 4 का एचसीएफ निकालना है। तो अल्टीमेटली यहां पर 100 1s हैं, यहां पर 60 1s हैं, हमें 100 और 60 का एचसीएफ निकालना है, दैट विल कम आउट टू बी 20। 100 और 60 का एचसीएफ 20 है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, 1 1 1 20 1s। 21 जो है वो 100 1s को 5 बार डिवाइड कर देंगे, एक बार करेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, और वैसे ही इसको 60 1s को ये 21 जो है वो 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। ये नंबर है आपके सामने, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, करिए प्लीज, जिसको लास्ट डिजिट का कंसेप्ट आता है वो करिए इसको जल्दी से। नॉर्मली क्या होता है, लास्ट डिजिट का कंसेप्ट जो है, लास्ट में अगर 1 डिजिट निकालना है ना, तो उस कंसेप्ट को हम समझ ये थे कि यार ये इजी है, ये तो क्या करना है इसमें, राइट? लास्ट डिजिट तो निकल ही जाता है ना। हाँ, इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट निकालना है, सो थोड़ा सा एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, करेंगे प्लीज। जिसको आता वो एफर्ट करिए, और जिसको नहीं आता तो मेरे साथ चलिए। लेट्स राइट दिस सीरीज। इस सीरीज को थोड़ा हम अपने स्टाइल में, अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। 1 पावर 11, 2 पावर 11, 3 पावर 11 ये है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1 पावर
I write it 1 power 11, 2 power 11, 3 power 11, 4 power 11, 5 power 11 and so on up to नीचे 10 power 11 हो गया. नेक्स्ट में लिखते हैं 11 power 11, 12 power 11, 13 power 11, 14 power 11, 15 power 11 so on 20 power 11 and इधर को 21 power 11, 31 power 11, 41 power 11 so on. कहाँ तक जाएगा लास्ट में 91 power 11, 92 power 11, 93 power 11 and so on. नीचे कहाँ तक जाएगा दिस विल बी 99 power 11 और यहाँ पर 90 power 11 आ जाएगा, 89 power 11, 100 power 11 तो है ही नहीं. डन. चलो अभी देखो हमने ऐसा किस लिए लिखा कि हम क्योंकि ये हमें कह रहा था कि 1 से लेकर 19 तक ऐड करो. हम अपने तरीके से ऐड करते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं. लेट्स ऐड इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर. ये बताओ 1 पावर 11 का लास्ट डिजिट 1 आएगा, 11 पावर 11 का लास्ट डिजिट 1 आएगा, 21 पावर 11 का लास्ट डिजिट 1 आएगा, 31 पावर 11 का लास्ट डिजिट 1 आएगा, 41 पावर 11 का लास्ट डिजिट 1 आएगा. डन. तो 91 पावर 11 का लास्ट डिजिट 1 आएगा. तो ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेके 91 तक, कितने नंबर लिखे हम 10 नंबर लिखे. तो जब इनको ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 10 बार लिखा जाएगा. ऐड करेंगे तो 10 और 1 कितना हो गया 10. तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, लास्ट डिजिट विल बी 0. लास्ट डिजिट विल बी 0. 2 पावर 11 किया हमने, 2 पावर 11 का जो भी डिजिट आता है, वैसे तो चलो 8 आता है, बट जो भी डिजिट 2 पावर 11 का आएगा वही लास्ट डिजिट किसका होगा 12 पावर 11 का, 22 पावर 11 का, 32 पावर 11 का, सबका लास्ट डिजिट सेम आएगा. और जब इनको ऐड करेंगे ऐसे ऊपर नीचे लिख के तो 10 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 80 आ गया. तो 80 में से लास्ट डिजिट कितना आएगा दैट विल बी 0. वैसे ही 3 की लाइन का लास्ट डिजिट 0, 4 की लाइन का लास्ट डिजिट 0, 5 की लाइन का लास्ट डिजिट 0 एंड सो ऑन. 99 की लास्ट की लाइन का लास्ट डिजिट 0. और ये 10 20 30 40 ये तो लास्ट में कितना बनता है, ये तो 0 बनते ही है. तो सबको हम एड अप कर देते हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गेट द डिजिट टू बी 0. हमारे पास क्या डिजिट आता है, लास्ट विल बी 0. अब देखो इसमें क्या है, इसमें पावर 11 है, 11 की जगह 6 होती, 11 की जगह 111 होती, तब भी आंसर कितना आता, आंसर वुड हैव बीन 0. यहां पर 99 तक लिखा हुआ, 99 की बजाय अगर ये 999 तक भी ले जाओ, स्टिल इन दैट केस आंसर विल कम आउट टू बी 0. ध्यान रखना कुछ और ना कर दे. पावर्स अगर डिफर करेंगी तो थिंग्स कैन बी डिफरेंट, राइट. आई विल ब्रिंग आउट सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर जहां पर पावर्स डिफर कर रही हैं विद एवरी नंबर, एवरी नेक्स्ट नंबर पावर थोड़ी सी डिफर करते हैं, वो वाले एग्जांपल भी लेके चलेंगे. बट अदरवाइज आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड. ये चीज क्लियर है आपको, यू कैन इजीली फॉलो दिस क्वेश्चन. यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 0. चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिमाइंडर का कंसेप्ट है. यहां पर 50 पावर 56 पावर 52 इज डिवाइडेड बाई 11. बताइए रिमाइंडर कितना बनेगा. 50 पावर 56 पावर 52 डिवाइडेड बाई 11. 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर. रिमाइंडर का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. व्हाट विल हैपन. यस, जिसको आता है रिमाइंडर का कंसेप्ट अप्लाई करिए. क्या करेंगे हम 11 से, देखो 11 से 50 है, 11 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे. 11 5 सा 55, आगे चलेंगे कोई चैलेंज नहीं है. सो आई कैन राइट इज 55 माइनस 5. 50 को क्या लिखना है 55 माइनस 5 रेज टू पावर 56 होल पावर 52 डिवाइडेड बाई 11. दिस कैन बी रिटन एज 11 से 55 डिवाइड हो गया माइनस 5 रेज टू पावर 56 रेज टू पावर 52 डिवाइडेड बाई 11. फर्दर माइनस है और पावर इवन है, 56 की पावर 52 है तो इवन पावर है, तो आई कैन राइट 5 पावर 56 होल पावर 52 डिवाइडेड बाई 11. 11 से डिवाइड करना है. फाइन. अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. 5 की जो पावर्स हैं, 5 की बहुत सारी पावर्स हैं, 56 रेज टू पावर 52 ये तो पावर है 5 की. फाइन. सो अब 11 के टेबल में 5 की कौन सी पावर आसपास होती है. जैसे 5 है, एक 5 आ गया, 5 पावर 1 इज 5, 5 पावर 2 करेंगे 25, तो 11 से करेंगे तो 3 बचता है रिमाइंडर. यहाँ पर तो 5 बच जाता है, यहाँ पर 11 2 22 3 रिमाइंडर बचेगा. 5 पावर 3 इज 125, तो 11 इंटू 11 121 4 रिमाइंडर बचता है. 5 पावर 4 इज 625,
तो 625 11 से करेंगे, 11 5 55 75, तो यहाँ पर -2 रिमाइंडर बचाता है। 5 पावर 5 -2 का रिमाइंडर का कंसेप्ट आई होप दैट आपको क्लियर होगा। 5 पावर 5 है 3125, और 3125 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो कितना बनेगा, 516 और 325, 6 में से 5 चले गए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ये मैंने 11 से डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगा दिया। ऑड प्लेसेस के ऊपर डिजिट है 5 और 1 6, और 3 और 2 5, 6 - 5 किया तो 1 आ गया। क्लियर? तो 1 यहां पर ये वैल्यू कितनी बनती है, 1, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये सबसे नजदीक यही हो सकता है। अदरवाइज 5 की पावर जितनी मर्जी ले लो, 11 से पूरा पूरा डिवाइड तो होगा ही नहीं। सो इट मींस 5 की पावर 5 जो भी होगी वो 11 के मल्टीपल के पास होगी, 11 के मल्टीपल के से एक ज्यादा होगा, राइट? तो व्हाट रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब 5 की पावर 5 जो भी होगी, 5 पावर 5 कभी भी आएगा तो इसको हम लिखते हैं 11a plus 1. This will be a 11a plus 1 type number. This will be a 11a plus 1 type number. So what we do, हम क्या करेंगे इसके साथ में, इसको क्या कहते हैं हम, 11a plus 1 टाइप का नंबर है, तो हम यहां पर ये जो इसकी पावर्स हैं, इसकी पावर है, इसमें से देखते हैं कि 5 की मल्टीपल कितने होते हैं, जो बच जाएगा उसको हम अलग से लिख देंगे। 5 पावर 5 है ना, अब हमने इस नंबर को क्या लिखना है, इस नंबर को लिखना है दिस इज इक्वल टू 5 पावर 5 होल पावर, जो बचेगा वो, ठीक है। जो पावर 5 का मल्टीपल में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो इंटू 5 पावर कुछ लिख देंगे हम, ठीक है। तो 5 इंटू वॉट क्या नंबर आएगा वो हम देखते हैं। तो यहां पर कितने हैं, 56 पावर 52 है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे 5 की पावर 5 लिखना है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बनता है, ये बनता है 55 प्लस 1 पावर 52 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 55 डिवाइड हो गया पूरा पूरा, बचा कितना, 1 पावर 52 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 5। इट मींस 56 पावर 52 ये जो नंबर है, ये 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। सो इट मींस मैं इसको 5n प्लस 1 लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट एज 5n प्लस 1। क्लियर? इस स्टेप को, एक स्टेप मैंने आगे चला डायरेक्ट लिख दिया था, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। सो वी हैव हियर, वी हैव 5 पावर 56 पावर 52 को लिखते हैं हम 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11। सो 5 पावर 5 होल पावर n इंटू 5 पावर 1 डिवाइडेड बाई 11। 5 पावर 5 को कैसे लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन 11a प्लस 1, 11a प्लस 1 रेज टू पावर n डिवाइड प्लस इंटू 5 पावर 1 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 से ये 11a डिवाइड हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 11 का मल्टीपल है, बचा कितना यहाँ 1, 1 पावर n इज 1, so that is 1 into 5, so finally we are left with 5 by 11। so 11 से जब मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो my answer to the question will come out to be option B, 5 ऑप्शन बनेगा, 5 ऑप्शन बनेगा। देख लो ध्यान से क्या किया हमने, सबसे पहले इसको 5 की टर्म में ले आए, 5 पावर 56 रेज टू पावर 52 बना। फिर हमने देखा 5 की पावर 5 जो है वो 11 के मल्टीपल से एक ज्यादा होती है, तो हमने इसको 5 पावर 5 की फॉर्म में लिख दिया। हमने इसको 5 से, जो पावर्स है उसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो इसको हमने 5n, 5 का मल्टीपल प्लस 1 लिख दिया, हमने 5n प्लस 1 लिख दिया। तो 5 पावर 5 अलग कर दिया, रेज टू पावर n इंटू 5 पावर 1 कर दिया। 5 पावर 5 इज 11a प्लस 1, जो कि 11 से 11a डिवाइड हो गया। 1 पावर n इज 1 इंटू 5, so 5 by 11। So answer to this question will come out to be option B, that is 5 answer। I hope that you are able to follow it। जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है वो तो कर पा रहे होंगे, बट एनीवे जो न्यू कमर्स हैं, might be a challenge for you। Okay, let's go to the next one। 2222 raised to power 5555 and 5555 raised to power 2222 is divided by 7। the remainder is what? इसको 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या होगा? यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या रहेगा इसमें? करें हम, स्टार्ट करें। 2222
रेज टू पावर 5555 प्लस रेज टू पावर 5555 रेज टू पावर 2222 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करते हैं हम, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 से 21, 1 बच गया 12, 7 1 7, 5 बच गया 52, तो 7 7 49, 3 बच जाता है यहाँ पर। सो मैं इसको लिखता हूँ 3 पावर 5555 प्लस 7 से इसको इधर डिवाइड किया, 7 7 49, 6 65, 7 9 63, 2 बन गया 25 और 7 से 21, तो 4 पावर 2222 डिवाइडेड बाई 7 है। अब देखो ये भी 1111 का मल्टीपल है, ये भी 1111 का मल्टीपल है, तो मैं इसको लिखता हूं 3 पावर 5 होल पावर 1111 एंड 4 पावर 2 होल पावर 1111 ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 7। 3 पावर 5 इज 243 रेज टू पावर 111 प्लस 4 पावर 2 इज 16 रेज टू पावर 4 टाइम्स 1 है, सॉरी, डिवाइड बाई 7। सो 243 को फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितना बचा, 7 3 21, 333 बचा, तो 7 5 35, 2 आगे चला गया ना, 33 को 7 से डिवाइड करें, 7 5 35 आगे चला गया, तो -2 ले लेते हैं, -2 की पावर 1111 प्लस यहां पर 7 2 14, ये ऊपर वाला नीचे वाला है, 7 2 14 और 2 बच गया, तो 2 की पावर 1111। डन, क्लियर हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, -2 की पावर क्या है, डिवाइडेड बाई 7 है, -2 की पावर ऑड है, तो -2 रेज टू पावर 1111 प्लस 2 रेज टू पावर 1111 डिवाइडेड बाई 7, 0 divided by 7 and the remainder will come out to be 0, option A. Fine, I hope that you are able to follow this question. I hope that you are able to follow this question. Yes, please. Okay, so आज के लिए हम ये 5 questions करें हमने, ठीक है, and if you want to follow the upcoming videos, what you need to do is आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, एंड इन एडिशन टू दिस लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक लाइक और एक शेयर, दैट्स व्हाट वी नीडेड। यस, एंड दोज कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉर द कैट 2021 की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, जो हमारा कैट 2021 के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, these are the programs in front of you, right? CAT 2021 का जो प्रोग्राम है, so there will be 180 plus live videos, videos रहेंगे, live classes रहेंगी where you can interact with the teacher, and 320 plus video classes, recorded classes रहेंगी that you can access till CAT 2021। CAT का जब एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, तब तक आप इनको एक्सेस कर सकते हो, वीडियोस कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। there will be 150 plus topic test, 60 sectional test रहेंगे, 30 mock test रहेंगे in all, 60 बुक्स आपको दी जाती हैं, दैट इज स्टडी पैकेज एंड दैट विल बी हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में आपको डिस्पैच किया जाता है आपके घर पे। देयर विल बी मोर देन 10,000 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे, एंड यू कैन एक्सेस योर मेंटर्स और योर गाइड्स एनी टाइम 24/7 दे आर अवेलेबल। और मेंटर्स में बात करें, देयर पीपल हु आर आई एम ग्रेजुएट्स हु विल बी मेंटरिंग यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, इवन आफ्टर योर प्रिपरेशन द पीपल कीप इन टच विद देयर मेंटर्स। And then GDPI session after CAT भी रहेंगे, and apart from this along with the CAT, right, अब CAT की प्रिपरेशन जैसे 21 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, so इसके साथ साथ में every Sunday will have a special personality development session in which we have अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, जो ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन भी करेंगे, बट ऑनलाइन में भी हम जो है वो ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पोर, इस तरह की हम एक्टिविटीज जो हम करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी, बिकॉज अल्टीमेटली आप में जो CAT का एग्जाम है ना, दैट इज वन स्टेज टू गेट इनटू द IIMs और द टॉप B schools। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज GD एंड PI राउंड, और बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, यू गेट अ कॉल बट कन्वर्ट नहीं हुई, कॉल तो आ गई बट कन्वर्ट नहीं हुई। तो हमें उस चीज, हमें इन बिटवीन नहीं फंसना है, हमें जब कॉल है तो कॉल वो कन्वर्ट होनी चाहिए। यू नीड टू बी द बेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, रिटन और साथ में पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से GD पे, वहां पर भी आपको बढ़िया से अच्छे से परफॉर्म करना है। सो विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग राइट फ्रॉम day one, and doubt session, live doubt session every weekend along with the test, and just before the final CAT exam there will be 40 days live revision session online वालों के लिए, offline वालों के लिए अदरवाइज भी जो है वो लाइव सेशन रहता है, लाइव क्लासेस रहती हैं, लाइव मीन टू से ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं वहां पर सेंटर में, जब आप विजिट करके वहां सेंटर में क्लास लगा सकते हैं।
इसके अलावा वी आल्सो कवर अप द ज़ैट, स्नैप्स, एनमेट, टेस्ट, IFT, ये सारे एग्जाम्स कवर रहेंगे इसके अंदर ही. That is for CAT 2021 program. And fee for the whole program is just 25,000 rupees. 22,499 rupees is the total fee. That covers everything. ये सारा का सारा पैकेज उसके अंदर कवर है. And there are also 10 days money back guarantee in case you start up with your program. Otherwise, you can through YouTube channel you can have an idea the level of teaching, किस level के ऊपर हम आपको teach कर रहे हैं. And otherwise, this 10 days money back guarantee, right? You can get your money refunded within 10 days of your registration. Next, similarly, those candidates who are aiming for the CAT 2020 program, so there will be 260 plus live videos. Almost 2 years हैं आपके लिए. 260 plus live videos, 350 plus video recorded videos आपको मिलेंगी. 200 plus topic test हैं, sectional test 90, 30 जो है वो मॉक टेस्ट रहेंगे आपके. स्टडी पैकेज में 20 बुक्स होंगी. मोर देन 12,000 क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस. गाइडेंस राइट फ्रॉम डे वन आप लेके, और 2 साल के लिए जो आपको गाइडेंस रहेगी इसके लिए. GD पे प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर कैट, लाइव डाउट सेशंस, 40 डेज लाइव बैच, 40 डेज का जो रिवीजन बैच रहेगा आपका जस्ट बिफोर द कैट एग्जाम. ऑफलाइन होगा, मतलब प्रॉब्ली 2 years डाउन द लाइन वी होप कि ये सिचुएशन विल बी नॉर्मलाइज एंड वी विल बी एबल टू डू द थिंग्स ऑफलाइन एज वेल. सो जैसे भी रहेगा, ऑफलाइन अगर आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑफलाइन तो अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा. दैट विल आल्सो कवर ऑल दीज एग्जाम्स एंड द फी फॉर दिस होल प्रोग्राम इज 35,000 ओनली. फाइन. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू गो फॉर द एंटायर प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के 21 या 22 के लिए जाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम. आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट? बिकॉज व्हाट हैपेंस, अभी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, यू गेट एन एज, बिकॉज by the end of say June or July you will be well prepared and you can start your revision, you can take up your mock test series and all. Fine. So if you want to get in touch with, this is our contact details, right? 7529081100. You can contact us for the online as well as the offline classes. Fine. And we aim to train you people for the IIMs, right? If you're thinking of IIMs, think of Nimbus, right? And we are always there to help you out. So I hope that you like the video and you will not forget to like and share the video and subscribe to आपने by default कर ही लिया होगा. So thank you very much. See you soon with the next video. All the best.